So, first we shall discuss the topics of the class. So, we shall discuss today some conceptual part of universe. It is origin of a star, origin and life cycle of a star. And we explore the relationship between black hole, pulsar, even our sun. हाँ, सब में क्या क्या एक को रिलेशन है, तो वी शैल डिस्कस all such things one by one. Again, thereafter, so let me first show you the class topics, or thereafter we will move ahead. Wormhole. Wormhole, actually, wormhole is quite different. Black hole is well established concept, and wormhole concept of wormhole has recently come into light, or scientists are exploring द नेचर ऑफ दैट वार्म होल. तो अभी दोनों अलग अलग हैं. ब्लैक होल का तो पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है. तो नाउ वी शैल डिस्कस टुडे कंट्रीब्यूशन. टॉपिक क्या क्या करेंगे हम लोग, वी शैल डिस्कस फर्स्ट आइडेंटिफाई हाईलाइट सच टॉपिक. तो टॉपिक ऑफ द क्लास, टॉपिक्स ऑफ द क्लास, वेरी फर्स्ट वी विल डिस्कस द आइडिया ऑफ द origin and life cycle of a star. This is kind of VVI topic, reason being the whole story of formation as well as the development of a star was forwarded by the Indian scholar. He is Subramaniam Chandrasekhar. तो इन्हीं का contribution है, तो we will discuss it in detail. पूरा कहानी है उसकी. Thereafter we move ahead to another conceptual part, that is origin of universe. Origin of universe, that is Big Bang theory and standard model. उसके बाद thereafter we will start some basic topic, that is solar system. तो यहाँ चलेंगे. Two topic will be conceptual and one topic will be factual. अब देखो, यहां मैं पहले ही क्लियर कर दूं, यूपीएससी इज नॉट टेकिंग कंसर्न टू द फैक्ट्स. फैक्ट पे जाता उसका कंसर्न नहीं रहता है. तो यू नीड टू क्लियर कॉन्सेप्ट वेरी वेल, ओनली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन आस्किंग बाय यूपीएससी. तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के जहां पे पार्ट आएंगे वहां पे हमें फोकस ज्यादा करना है. रेस्ट ऑफ द थिंग आर फैक्चुअल, तो फैक्ट तो है, लेकिन रोल ऑफ फैक्ट्स ओवर द टाइम reduce, decreased enough. तो very first topic, origin and life cycle of the star. चलते हम लोग origin and life cycle of a star. एक छोटी सी कहानी सुनते हैं, होता क्या है स्टार के साथ. All learn star theory. Some are massive star, some are big star. The remain of a star, that is black hole, pulsar. तो this was a puzzle. Puzzle means kind of scientist community was very confused about the relationship these type of a star. कैसे सब star for white star, some star. तो what is going on? Their scholar, he was Subramaniam Chandrasekhar. S. Chandrasekhar, Subramaniam Chandrasekhar. क्या और what? और he came with a formula, that is a theory is still very relevant. He says that, look, all such things, life cycle of a star is the result of the mass of a star. Mass of a star, मतलब एक बड़ा mass वाला है, तो life cycle of that massive star must be different from the star with lesser mass. जिसका mass कम है, लाइफ अलग चलेगा. आ जाओ, जिसका मास ज्यादा है वो अलग चलेगा. मतलब ऐसा समझ लो कि गरीबों की जिंदगी अलग चलेगी और अमीरों की जिंदगी अलग चलेगी. ऐसा वाला कॉन्सेप्ट लेके आए. और थ्रेशोल्ड लिमिट, थ्रेशोल्ड मतलब न्यूनतम क्राइटेरिया टू बी अ मैसिव स्टार ही फॉरवर्डेड. ही सेज कि भाई m इंटू 1.4 इज टू मास ऑफ सन. मास ऑफ सन इज टू 1.4 will be the threshold limit.
थ्रेशोल्ड का मतलब मिनिमम रिक्वायर्ड लिमिट. Over that, the star will be considered as massive star, and the life cycle of massive star will be totally different. It is a star lesser than this mass will have different life cycle. Average star. Ab thereafter he explored the all such consequences, all such sequence stages of the formation of a star. और देखो कितना बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन था कि over the time when it was evaluated, it was examined, is it right or wrong? Later it was found that that is totally right. It is very true. That explains the mechanism, whole mechanism of a star, relationship between nebula and black hole. And that is why finally in 1983, with this he was awarded with, for this work he was awarded with the Nobel Prize of Physics. तो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है. How many Indian have so far awarded with this prize? कितने? Only countable. मुश्किल से 7-8 लोग हैं जिनको ये प्राइज मिला है. Otherwise we have scholars but not Nobel awardees. Nobel awardee नहीं है हमारे पास, लेकिन ये वो थे जिन्होंने इसको प्रूव भी किया. और स्टिल द थ्योरी इज रिलेवेंट विथ रिस्पेक्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टार. तो आते हैं इसको शॉर्ट समझते हैं. ये पूरी कहानी है यहाँ पे. यू विल गेट द आइडिया. हम लोग समझेंगे थोड़ा अपने बेसिक तरीके से लाइफ साइकिल ऑफ ए स्टार, ऑरिजिन एंड लाइफ साइकिल स्टार. तो इट वॉज एक्सप्लेन्ड बाय, शॉर्ट में बनाएंगे नोट इसका, explained by Indian American physicist S. Chandrasekhar, S. Subramaniam Chandrasekhar, S. Chandrasekhar. And for this work, he was awarded with Nobel Prize Physics in the year 1983. It was a joint award, not award for him. एक्सक्लूसिव नहीं दिया गया. विथ फाउलर, ये आदमी था विलियम ए फाउलर, उसके साथ मिला. ही शेयर्ड, अनफॉर्चुनेटली शेयर किया कर पड़ा. तो उनका एक पाइसनेस होता है. आओ, तो इट वॉज गिवन बाय शेखर नोबेल प्राइज अवार्डेड टू हिम इन 1983 एंड ही प्रोपाउंडेड अ फॉर्मूला. ये मेन फॉर्मूला है जो पूछा भी गया है, दैट इज चंद्रा लिमिट. तो चंद्रा लिमिट is referred by the capital M, mass, equal to 1.44, 1.4 or 1.44 is to mass of sun. That is the Chandra limit. M dot is mass of sun. Mass of sun. अब देखो why mass of sun? तो sun here works as the unit of measurement. जैसे पुराने जमाने में आलू ले लेते थे और उससे वेट करते थे, और सिमिलरली सन इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट. इफ द स्टार, अच्छा, व्हाट विल बी द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ चंद्रा लिमिट? इट विल बी ग्रेटर देन द सन और स्मॉलर देन सन. ग्रेटर देन द सन. तो ये भी दिमाग में रखना है, ऐसा ना हो कि उसको स्मॉलर समझ लें. इफ वी कंपेयर चंद्रा लिमिट, तो मैसिव स्टार विल हियर, मैसिव स्टार यहां पे होगा, स्टेज ऑफ मैसिव स्टार, देयर आफ्टर चंद्रा लिमिट, यहां पे कांस्टेंट चंद्रा लिमिट एंड देयर आफ्टर सन लाइक एवरेज स्टार. तो ऑलवेज कीप इन माइंड चंद्रा लिमिट इज ग्रेटर देन द मास ऑफ सन. दैट इज वन पॉइंट. तो चंद्रा लिमिट इज काइंड ऑफ द मेजरमेंट यूनिट that explains between the stars. And for this work he was awarded with the Nobel Prize 1983. He propounded a formula. Point in your introduction if it comes. Introduction में इतना ही चीजें लिखना पड़े. अब चलते हैं, let us discuss the theory of Chandra S. Chandrasekhar. अब मेन थ्योरी स्टार्ट होगा, that will be a diagram. हम लोग डायग्राम के थ्रू स्टेप बाय स्टेप करते हैं उसको, कैसे कहानी चल रही है. ये पूरा पिक्चर ऐसे क्यों बनाते हैं वो वी विल एक्सप्लोर.
ठीक है, उसमें तो सारा एक ही साथ आ गया है। और ब्लैक होल कैसे है, तो अभी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। आते हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ ए स्टार। देखो, लाइफ साइकिल ऑफ ए स्टार बिगिंस फ्रॉम द नेबुला। सारा कुछ काम होता है नेबुला के पास। इट मे बी अ स्मॉलर नेबुला। तो नेबुला बर्थ प्लेस ऑफ ए स्टार। नेबुला, व्हाट इज नेबुला? बर्थ ऑफ ए स्टार, बर्थ ऑफ स्टार। तो वी ऑल टेकन दैट नेबुला इज a cloud of gas and dust. बहुत सारा, when dust and cloud accumulate in space, the formation is called nebula. Cloud of gas is called nebula. अब देखो क्या होता है। Nebula is kind of accretion. Accretion means वहां पे सब इकट्ठे हो गए हैं। तो accretion of start exerting the gravitational starts contracting. A particle start contracting. So soon after this nebula formation, the massive produces the massive protostar. So thereafter, the next stage after formation of nebula, the next stage will come that called protostar. Protostar is the first stage in the formation of the star. In this phase, due to the gravitational force, matter will accumulate at a circle in form of a star. तो धीरे धीरे अब यही जो मैटर नेबुला है, that will convert and start heating up due to collision, the influence of gravity, and this will lead to formation of two different star, massive protostar, PS मतलब protostar, and the average protostar. तो protostar is the first stage after formation of nebula. हो ये रहा है कि नेबुला था जहां पे गैस है, डस्ट। अब गैस और डस्ट आसपास आए तो दे स्टार्टेड एक्सर्टिंग ग्रेविटेशनल फोर्स टू ईच अदर। सब देखो खींचना शुरू किया। देयर आफ्टर वेक्टर स्टार्टेड मर्जिंग विथ ईच अदर। जो भी मैटर्स थे वो धीरे धीरे एक दूसरे मर्ज होने लगे। दिस वे नेबुला बिकम अ वेरी सॉलिड, very stable mass that is called protostar. But due to this, what is interesting, तो protostar has no nuclear fusion. अब यहाँ पर कोई न्यूक्लियर फ्यूजन भी, what is interesting, no nuclear fusion, यहाँ पे ध्यान रखना है, no nuclear fusion, but it becomes warm. ये गर्म हो जाता है, it becomes warm. And why it become warm? तो ड्यू टू बॉम्बार्डिंग ऑफ, इससे धीरे धीरे उसकी गर्मी बढ़ रही है। मैटर आर मूविंग टूवर्ड द कोर ऑफ स्टार। अब आओ आगे क्या होगा। ओवर द टाइम, ड्यू टू बॉम्बार्डिंग, ड्यू टू इन्फ्लुएंस, ड्यू टू कॉलिजन विथ अदर पार्टिकल्स इन प्रोटोस्टार, क्या है, ड्यू टू कॉलिजन particles in protostar, the next stage of a star will begin. That is called main sequence star. Main sequence star. What is main sequence star? So main sequence star are more stable and star with nuclear fusion. अब due to collision over the time, the temperature of protostar increases up to the threshold limit. क्या था threshold limit? अच्छा वो तो अलग है, एक दूसरा भी टेम्परेचर का threshold limit था, 10 to 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अब जैसे ही ड्यू टू collision among particle in protostar, temperature reaches up to 10 to 15 million degrees Celsius. This is the ideal condition for nuclear fusion. अब जैसे ही यहाँ पे टेम्परेचर पहुंचता है, the nuclear fusion begins. Hydrogen atom, that is deuterium, and the tritium start joining each other and forming helium. तो इस तरह से फर्स्ट स्टार कम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम द
Protostar, that is the formal beginning of the star. If the size of a star will be greater than the Chandra limit, यही पे है Chandra limit. If the size of a star will be greater than Chandra limit, the star will called massive star. अब ये क्या बनेगा? Massive star. Again, if the star will lesser than Chandra limit, the star will called the average star. Average star, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, और ये बन गया एवरेज स्टार. आ रहा है चीजें? अब देखो क्या हो रहा है. एवरेज स्टार, आवर सन इज अ प्रोटो स्टार और मेल सीक्वेंस स्टार. In sequence star, तो मेल सीक्वेंस स्टार आर द टाइप ऑफ स्टार वेयर न्यूक्लियर फ्यूजन इज गोइंग ऑन. वहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन चलेगा तभी वो कहलाएगा मेन सीक्वेंस स्टार. इसके पहले जो फॉर्मेशन हो रहा है तेज वीकेंड से. अब तो एक बड़ा आदमी है, एक छोटा आदमी है, दोनों का लाइफ स्टाइल अलग अलग होगा. तो दैट इज वेरी ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द स्टार. Now we shall move ahead toward the next chapter of this story. अगले स्टोरी पे हाँ, इसको एक बार रिपीट कर. देखो होता ये है, स्टार का फॉर्मेशन एक प्लेस एट नेबुला. नेबुला मतलब क्लाउड ऑफ डस्ट. टेम्परेचर ऑफ नेबुला यूजुअली फाउंड वेरी लो. बहुत कम टेम्परेचर होता है, ठंडे होते हैं वहां पे, जो भी गैस होगा वो सब कोल्ड होते हैं. अब होता ही कि ईच एलिमेंट इन आवर यूनिवर्स हैव सम सॉर्ट ऑफ ग्रेविटी. हर चीज के पास ग्रेविटी है. अब जैसे ही ये डस्ट और क्लाउड एक जगह एक्यूट होते हैं, दैट इज द फेज ऑफ एक्रीशन. एक्रीशन मतलब इकट्ठा होना. जैसे ही वो आसपास आने हैं टल्स ऑफ गैसेस पार्ट्स को, इससे क्या होता है, धीरे धीरे इनका कंट्रेशन एक जगह पे होने लगता है और साथ में टेम्परेचर बढ़ने लगता है. तो ग्रेविटी के कारण when particles come closer, so what we have discussed so far, life cycle of a star. So in beginning what is going on? So there is formation of nebula. What is nebula? So nebula is the cloud of dust and gases. How nebula come into existence, ये कैसे आता है? तो ये भी तब आता है जब स्टार मरते हैं. That is the वेस्ट मटेरियल डेब्री ऑफ द स्टार. कोई स्टार फूटता है तो फिर ये बनता है. ठीक है, तो कुल मिलाकर कहानी जहां से शुरू होगी वहीं पे खत्म होगी. नेबुला इज द बर्थ प्लेस ऑफ ए स्टार. व्हाट इज गोइंग ऑन विथ नेबुला? तो एट वेरी फर्स्ट स्टेज पार्टिकल्स कम क्लोजर. गैस एंड डस्ट कम क्लोजर ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी. अब विथ दिस व्हाट हैपेंस? तो they starts colliding with each other. Collision among particle increases the temperature, and with this process the formation of a star begins. अब यहां से ये बनने लगता है. The very first stage is called protostar. Protostar is the star that have some sort of heat, some sort of structure, but no nuclear fusion taking place at protostar. अभी तक वो नहीं बनाएगा. शेप, साइज, इवन कलर में वैरी, वो बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है. दैट इज काइंड ऑफ अनस्टेबल स्टेज. ये स्टेबल स्टेज नहीं है, ये अनस्टेबल स्टेज है, अनस्टेबल स्टेज है. ये मतलब अर्ली फेज है. समझ लो कि मकान बनाना है और हमने यहाँ पर सीमेंट वगैरह लाके रखा है, सीमेंट सैंड वगैरह. तो दैट इज द प्रोटोस्टार. नेक्स्ट फेज कम विथ द टेम्परेचर. व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस अप टू 10 to 15 million degrees Celsius, only then the nuclear fusion initiates, triggers. और thereafter what is going on? तो hydrogen atoms starts joining and forming helium. तो हाइड्रोजन फ्यूजन टेक्स प्लेस एंड मैसिव और एवरेज स्टार कम इनटू एग्जिस्टेंस. अब यहीं पे देखो कि अपने एटमॉस्फेयर में भी बहुत सारे क्लाउड हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर नॉट यील्डिंग रेनफॉल. सबसे वर्षा तो नहीं होती है. तो सिमिलरली
A star, protostar may turn into massive or main sequence star depending upon heat and temperature. अगर वहां तक टेम्परेचर पहुंचा तभी नेबुला से स्टार बनेगा, अदरवाइज दिस विल बी अ फेल्ड अटेम्प्ट, वो बनेगा ही नहीं, वहीं पे जाके रुक जाएगा. तो टेम्परेचर इज द फंडामेंटल प्री रिक्विजिट टू बी अ स्टार. टेम्परेचर नहीं पहुंचा वहीं पे वो क्लाउड व्लाउड बन के इधर उधर बिखर जाएगा. अब आओ चलते हैं आगे की कहानी क्या है इसके आगे. चलो, तो नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर, मेन सीक्वेंस स्टार. अब मेन सीक्वेंस स्टार फॉलो डिफरेंट स्टेजेस इन लाइफ. एवरेज स्टार मे हैव डिफरेंट लाइफ साइकिल, मैसिव स्टार मे हैव डिफरेंट लाइफ साइकिल. दोनों का अलग अलग है. एक पैसा वाला है वो अलग लाइफ जिएगा, एक गरीब है उसका अलग लाइफ होगा. चले आगे. अब देखो ये जो मैसिव स्टार है, मैसिव स्टार इज क्वाइट रिच स्टार because of the mass of gases. Average star is kind of poor star. Reason कि mass of average star is very low than the massive star. हाँ, average star से बड़ा होगा और massive star से छोटा. अब चलते हैं आगे, कहानी आगे क्या जा रही है. अब देखो आगे क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन. तो वी लर्न सो फार न्यूक्लियर फ्यूजन इज द अंडरलाइंग प्रोसेस बिहाइंड द ब्राइटनेस ऑफ द स्टार. स्टार जो भी ब्राइट कर रहे हैं दैट इज द. अब स्टार्ट करते हैं मैसिव स्टार. मैसिव स्टार एंड अगेन हियर दूसरा ले लेते हैं एवरेज स्टार. एवरेज स्टार. अब देखो क्या चल रहा है कहानी में. मैसिव स्टार, तो वी लर्न ऑलरेडी मैसिव स्टार आर द स्टार विथ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ गैसेस. तो इन मैसिव स्टार ड्यू टू हाई मास द न्यूक्लियर फ्यूजन विल टेक प्लेस एट वेरी हाई रेट. बहुत जल्दी जल्दी इसका मास बर्न होगा, गैसेस बर्न होंगे. तो सून आफ्टर दिस फेज ऑफ हाइड्रोजन फ्यूजन टेम्परेचर में इंक्रीज एट वेरी नेक्स्ट लेवल. तो मैसिव स्टार, इफ टेम्परेचर ऑफ मैसिव स्टार क्रॉसेस द मार्क about 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस. अब टेम्परेचर कितना हो गया ड्यू टू हाई रेट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन टेकिंग प्लेस इन मैसिव स्टार. बहुत तेज तेज मास उसका बर्न हो रहा है. तो एट दिस पॉइंट व्हेन टेम्परेचर विल क्रॉस 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस, दैट इज 10 करोड़ degree Celsius temperature, helium atom starts fusing with each other. Now helium fusion will take place and atoms of helium join each other forming the carbon. So next stage will be carbon fusion. In massive star, carbon fusion initiates quickly, तुरंत, shortly. तुरंत फॉर्मेशन के बाद अब जो हीलियम उसका बन रहा है, तो हीलियम ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर विल कन्वर्ट इनटू कार्बन. एट दिस स्टेज कलर ऑफ स्टार में चेंज. इट फर्स्ट अपीयर ब्लू स्टार, रेड स्टार, ये सब इसके होते चले जाएंगे. कलर विल वेरी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. व्हाट अबाउट दिस? तो टेम्परेचर ऑफ एवरेज स्टार विल ऑल्सो इंक्रीज up to 100 million degree Celsius. But it will take time, more time. Reason being, burning of fuel taking place at very slow rate. धीरे धीरे ये जल रहा है. तो at terminal stage, मतलब at last stage इसमें चलेगा, but at last stage, शुरू में नहीं होगा. At last stage temperature में increase up to 100 million degree Celsius, and here helium fusion, that is helium fusion will take place, that is called helium fusion. Helium fusion, that is the last stage, and outcome of helium is carbon. So average star may have helium fusion and carbon will be the byproduct of this fusion. उसका भी होगा, लेकिन उसका कब होगा? देखो गाड़ी बंगला घर सबका होता है, घर वर. गरीब लोगों को घर बनाने में टाइम लग जाता है, लास्ट स्टेज में बनाते हैं. अमीर आदमी तुरंत ही खरीद लेता है.
वही हो रहा है यहाँ पे। तो हीलियम फ्यूजन takes place in both type of a star, but with massive star, helium fusion began shortly. हाँ, while with the average star, helium fusion reaching up to helium fusion takes time. उसमें टाइम लगता है बहुत ज्यादा और एकदम लास्ट में ही जाके होगा. व्हाट अबाउट सन? तो नो हीलियम, सम हीलियम फ्यूजन इज टेकिंग प्लेस विथ सन. अभी उसका उस लेवल पे नहीं पहुंचा है. थोड़े थोड़े कुछ पॉइंट्स बन रहे होंगे अभी हीलियम फ्यूजन के. अब आओ, अब इसकी कहानी अलग चलेगी. नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेज ऑफ कार्बन फ्यूजन? अगेन कार्बन fail to retain their original status due to very high temperature. कार्बन fails. अब कार्बन भी यहां पर स्टेबल नहीं रह पाता है और कार्बन इज चेंजिंग इन फॉर्म ऑफ अनदर मैटर. अब यहां टेम्परेचर बढ़ता है, इट रीचेस अप टू 600 मिलियन डिग्री सेल्सियस. जब ये और ज्यादा गर्म होता है ड्यू टू हाई रेट ऑफ द फ्यूजन, इट चेंजेस, कार्बन चेंजेस. तो बहुत सारे फ्यूजन होते हैं. कार्बन फ्यूजन, अगला स्टेज कार्बन फ्यूजन. देयर आफ्टर कार्बन फ्यूजन प्रोड्यूसेस नियॉन, नियॉन फ्यूजन. देयर आफ्टर अगेन next stage comes, that is called oxygen fusion. Oxygen fusion, again oxygen combines with each other forming silicon. So this way next 4 stage comes during the stages. Finally the byproduct of silicon is iron. That is the terminal stage. मतलब ये धीरे 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 चलता रहता है. और लास्टली द एटम अपीयर, दैट इज कॉल्ड आयरन. तो आयरन तो अपना आयरन मैन है, एंड आयरन इज द मैटर दैट डू नॉट चेंजेस द फॉर्म. अब कहानी यहां तक चलती है. पहले वो हाइड्रोजन फ्यूजन से स्टार्ट हुआ. देयर आफ्टर इट पास टू हीलियम फ्यूजन. देयर आफ्टर कार्बन, नियॉन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एंड फाइनली इट रीच्ड एट द टर्मिनल स्टेज दैट इज कॉल्ड आयरन फ्यूजन. नाउ चेक द प्रॉपर्टी ऑफ आयरन. आयरन इज वन ऑफ द डेंसर एंड हैवियर मैटर. बहुत भारी होता है. अब इस स्टेज में क्या हो गया? तो देखो, ड्यूरिंग दिस स्टेज, मतलब रीचिंग टू दिस स्टेज, व्हाट हैपेंस? अब नाउ दिस स्टेज, तो दैट इज द फ्यूजन स्टेजेस. बहुत सारे फ्यूजन के स्टेज होते हैं. फ्यूजन स्टेज, फ्यूजन के बहुत सारे स्टेज चलेंगे. और आफ्टर दिस व्हाट हैपेंस? तो देखो, व्हेन आयरन फॉर्मेशन टुक प्लेस एट द कोर ऑफ ए स्टार, it means it is indication of the exhaustment of the fuel. मतलब फ्यूल उसके शॉर्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुका है. अब जो अंदर बच रहा है दैट इज फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज आयरन. तो कोर में धीरे धीरे एट दिस स्टेज द कोर विल, द स्टार कोर मतलब उसका बीच का पार्ट विल कन्वर्ट इनटू आयरन ओवर द टाइम, एंड द entire matter of massive star get exhausted. धीरे 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 वो खत्म. अब उसके पास न तो हाइड्रोजन है, ना हीलियम है, सब कुछ खत्म हो गया है. नाउ ओनली सम सॉर्ट ऑफ द डेब्री और वेस्ट मटेरियल रिमेन विथ स्टार एलोंग विथ दिस आयरन कोर. मतलब पूरा फ्यूल जल गया है, लकड़ी जल गया है, कोयला बीच में बचा हुआ है, चारों तरफ जो है एसेस दिख रहे हैं. ठीक है. एट दिस पॉइंट व्हाट हैपन? तो देखो, ओवर द टाइम व्हेन दिस स्टार्ट स्विचिंग ऑफ, ये जब ऑफ होने लगेगा, तो जब कोई चीज ठंडा होता है, आप देखो किसी में आग लगाओ पेपर में, तो पेपर भी जब जलने के बाद ठंडा होगा थोड़ा थोड़ा रेड कलर का दिखता है. तो एट दिस पॉइंट द कलर ऑफ ए स्टार चेंजेस एंड दिस बिकम मैसिव स्टार बिकम रेड सुपर जाइंट स्टार. सुपर जाइंट स्टार. इसी समय इसका जो आउटर एरिया एसेस है वो पूरा फूल जाएगा और दैट विल अपीयर रेडिश. दैट इज द लास्ट स्टेज. जलने के बाद सब लाल लाल हो जाते हैं, तो वो खत्म होकर बड़ा होने लगेगा, धीरे धीरे इधर उधर बिखरने के पॉइंट पे पहुंचेगा. और अंदर का जो कोर है दैट विल रिमेन वेरी सॉलिड,
वेरी इंटैक्ट इन फॉर्म ऑफ आयरन। अब यहां पे एक कहानी अलग होगी शॉर्टली। अब कहानी में ट्विस्ट ये आएगा कि आयरन, देखो आयरन इज काइंड ऑफ एलिमेंट दैट इज नोन फॉर इमेंस ग्रेविटी। ग्रेविटी इसके पास बहुत ज्यादा है, तो आयरन कोर विल स्टार्ट पुलिंग, खींचने लगेगा इसको। आयरन कोर विल स्टार्ट पुलिंग द मैटर विथ इट, सब कुछ वो खींचना स्टार्ट करेगा। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैटर विल नॉट बी एबल टू कम क्लोजर विथ द कोर। मैटर इसके पास नहीं आएगा क्योंकि वो लाइट मैटर है और आयरन खींच रहा है। तो देयर विल बी इम्बैलेंस बिटवीन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ कोर एंड द नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर कहेगा कि अंदर नहीं जाना है और आयरन कोर कहेगा अंदर आओ। At that point of time, due to instability between core and periphery, such a star explodes. एकाएक ये रेड स्टार फट जाता है, इतना स्ट्रेस आता है। लाइक सपोज बैलून, तो इफ यू आर ट्राइंग टू एयर द बैलून, बहुत सारा हवा अगर उसमें भरेंगे तो बैलून फाइनली फट ही जाएगा। तो ये कोर एक तरफ खींचता है और बाहर के मैटर अभी फूले हुए रहते हैं और वो अंदर सही से आ नहीं पाते हैं। इस कॉन्ट्रैक्शन से, मतलब एक छोटे से आप ले लो एक बाउल में बहुत सारा मैटर ठूस रहे हैं, इन दैट केस दिस मस्ट ब्रेक, वो टूटेगा ही टूटेगा। तो यही हो रहा है, आयरन बॉल इज स्टार्ट पुलिंग द मैटर एंड दिस रिमेन कांस्टेंट एंड दैट लेड टू अ एक्सप्लोजन दैट इज कॉल्ड supernova. Thereafter, this explode and the phase term is called supernova. अब यहां से आयरन कोर विल रिमेन इंटैक्ट, आयरन कोर बचेगा, बट ऑल द मैटर विल स्प्रेडेड आउट इन यूनिवर्स। मैटर फैल जाएगा और यही होगा इसका स्टेज, सुपरनोवा स्टेज। Supernova is the explosion in a star due to imbalance between iron core and the periphery. जैसे ही उसमें कॉन्ट्रैक्ट करता है वो आ नहीं पाता है, कुल मिला के वो फट जाता है। अब जैसे बहुत सिंपल है, एक चॉकलेट ले लो छोटा सा, उसको खूब जोर से दबा दो, क्या होगा? चॉकलेट फट जाएगा। तो द सेम थिंग इज गोइंग ऑन। आयरन कोर exert immense gravitational force that is not handled by the outer layers. So outer layer failed to handle that pressure and this way they breaks apart. तो वो टूटने लगते हैं, that is called supernova.